Hello everyone. In the previous lecture we have discussed about the design of the product. In this lecture we will be discussing about one of the most important aspect under production management, that is quality control. Quality basically vary from customer to customer, firm to firm and product to product. What is quality? Quality is the expected expected desired item from the manufacturing firm, and desired and expectation may vary from person to person. So in this lecture we will try to discuss that what we mean by quality control, what are the various factors affecting the quality control, and the various tools which help us in measuring the quality of our product. In this lecture also we will try to discuss about the SQC, statistical quality control, which help us in measuring the quality of a product with the help of a graphical representation. So students, in today's lecture we will be discussing one of the important topic of production or manufacturing company. Means without this topic the output produced cannot be brought in the market, whether it is in the form of tangible or intangible form. That is quality control. Before we discuss about the quality control, first of all we should know that what we mean by quality. Quality is basically the desired output, which means if the desired output is the quality, which means that it may vary from person to person, company to company, and product to product. Means a person having the higher desiredness can have the satisfaction if the quality is of very high standard. Means suppose मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने. Satisfaction with respect to drinking tea, चाय. चाय आपको घर में भी अच्छी मिलती है, 5 स्टार होटल में भी मिलेगी, 3 स्टार होटल में भी, और बाहर के ढाबे में भी. But it depends that what the standard that you have kept. On that way the quality will be checked. Means आपको घर की चाय बहुत अच्छी लगती है तो आप हमेशा you will say that the quality of the tea at your home is the best. दूसरे के घर में जाएंगे तो आपको वही चाय अच्छी नहीं लगेगी. And simply when you go to the 5-star hotel and you spend lot of money in having tea, still the satisfaction cannot be there. So that is why we say the quality is always dependent upon the person who is consuming the product, who is using the product. That will decide that what is the quality expected by the ultimate consumer. And when we say quality control, control is basically we can say a checking tool which heal up if the deviations are there. That means whenever we are trying to go for manufacturing of any product, we always plan. We set the objective, we set the target. That means the quality of the product has already been decided and set. And the control will be a tool which is going to operate before the manufacturing, during the manufacturing, and after the manufacturing, just to check that whatever we have planned, whatever we have targeted, it has been achieved in the same manner or not. So that can be said as the quality itself, the quality control. Like you can see
that what it is defined system that is used to maintain a desired level of quality of services. मतलब ये ऐसा सिस्टम है, ये ऐसा टूल है जो मदद करेगा आपकी उस लेवल को मेंटेन करने में जो आपने डिजायर किया है इन एनी प्रोडक्ट और सर्विस. लाइक it is a systematic control of various factors that affect the quality. That means it is going to control, this tool is going to control the various factors जो आपकी क्वालिटी को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. उन फैक्टर्स को ये कंट्रोल करेगा. क्वालिटी ऑलवेज डिपेंड अपॉन मटीरियल, लेबर, मशीन, टाइप ऑफ लेबर और वर्किंग कंडीशन. राइट मतलब वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं तो ऑटोमेटिकली द satisfaction and facilities and infrastructure will be there, which is going to increase, which is going to be seen in the output. Quality control क्या करता है? Quality control, it involve inspection at a particular stage. लेकिन ये भी कहा गया है कि इंस्पेक्शन ही सिर्फ एक तरीका नहीं है क्वालिटी को कंट्रोल करने का. प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स एट द सोर्स, मतलब पहले से ही, स्टार्टिंग से ही हम डिफेक्ट, अगर डिफेक्टिव मटेरियल है तो उसको हम रिप्लेस कर दें. अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जरिए उसको हम ओवरकम कर लें. एंड देयर शुड बी एन इफेक्टिव फीडबैक सिस्टम, करेक्टिव एक्शन प्लान. इंस्पेक्शन एक कोई टूल नहीं है, लेकिन इंस्पेक्शन एक बहुत बड़ा टूल है जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करता है. Always remember कि quality control is basically to have a check that whether the desired has been achieved or not, and if not, what are the reasons, and those reasons should be overcome and deviations have to be removed. Everything has to be done. मतलब आप समझिए quality control जो है एक healing effect है. See the definitions also, that what they mean. सेम वही है जो अभी कहा गया है. ऑपरेशनल टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज विच सस्टेन अ क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट विल सेटिस्फाई गिवन नीड आल्सो एज अ यूज ऑफ सच टेक्निक्स. अभी जो किया है इट इज ऑपरेशनल टेक्निक्स है एंड एक्टिविटीज विच इज सस्टेन अ क्वालिटी. हियर यू कैन सी द ब्रॉड मीनिंग दैट हैज बीन गिवन, दैट इट इज अ मैकेनिज्म by which product are made to measure up of a specification determined from customer, from demand, and transferred into sale, engineering and manufacturing requirement. measure करते हैं उसको हमने from the customer point of view, from the demand point of view, और फिर उसको we transfer into the sale, engineering and manufacturing requirement. Right? What are the objectives? ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है. रीजन बीइंग दैट द पर्पस, द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स दे आर वन सेम थिंग. कि दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस, या फिर इसका पर्पस क्या होगा, आउटकम क्या होगा. पहला देखिए इनकम पे ही आ गया. टू इंप्रूव द इनकम बाय मेकिंग द प्रोडक्शन मोर एक्सेप्टेबल. इनकम बिकम द मेन क्राइटेरिया. टू रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करना क्वालिटी से. टू अचीव इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन. क्वालिटी अगर हमारी बढ़िया होगी तो ऑटोमेटिकली जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो हमारा स्मूथ रन करेगा. Objective is that we are able to produce a high quality, or we can say the desired quality at a reduced price. To ensure satisfaction of customer, main चीज यही है भाई. जो कस्टमर डिजायर्ड कर रहा है उसको इंश्योर करना कि कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस किया गया है नहीं किया गया. टू मेक इंस्पेक्शन प्रॉम्प्ट टू इंश्योर क्वालिटी. जो भी इंस्पेक्शन का तरीका आप लगा रहे हैं
वो आपकी क्वालिटी को इंश्योर करे एंड टू चेक द वेरिएशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग के तहत जो वेरिएशन हुए हैं उनको हम चेक करें। देखिए, ऑब्जेक्टिव, जब तक ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं करेंगे तब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो क्रॉस चेक कैसे होगा कि हमने सही किया है कि नहीं किया है, व्हाट द बेनिफिट दैट वी आर गेटिंग। द सेम थिंग, जो ऑब्जेक्टिव फिक्स किया है वही हमारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। इफ द थिंग्स आर इन अ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, we are we get help in improving the advertising of the product, consumer is ready to pay the desired price, reduce तो होता ही होता है, ensuring on time deliveries and availability, assisting the management of an enterprise. These are the benefits. Now types of quality control, किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला ऑफलाइन, दूसरा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स की हेल्प ले सकते हैं जिसके जरिए हम लोग क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग प्लान। ऑफलाइन देखिए, इट्स प्रोसीजर डील विद मेजर, क्या ऑफलाइन में करेंगे, टू मेजर, टू सेलेक्ट एंड चूज द कंट्रोलेबल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। मतलब ऑफलाइन में बेस्ट तरीका तो ये है कि जो भी प्रोडक्ट और प्रोसेस आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपके ये पैरामीटर्स हैं, उनको पहले से ही जब आप सेलेक्ट करें उसी समय ही सोच लें। दैट मीन्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, डिफेक्टिव मटेरियल एंड डिफेक्टिव मशीन, डिफेक्टिव टूल्स, दे शुड नॉट बी एंटरटेन्ड। ट्रेन्ड एम्प्लॉय हैज टू बी देयर, कि अगर आपके सामने डिफेक्टिव मटेरियल नहीं है, डिफेक्टिव टूल नहीं है, डिफेक्टिव मशीन नहीं है और ट्रेन्ड एम्प्लॉय है, तो ऑटोमेटिकली जो क्वालिटी आएगी वो डिजायर्ड ही आएगी। तो हियर, टू सेलेक्ट एंड चूज कंट्रोलेबल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस पैरामीटर्स इन सच अ वे दैट डेविएशंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस आउटपुट एंड स्टैंडर्ड विल बी मिनिमाइज। अपने आप में ही वो कम हो जाएगा। दैट इज अ ऑफलाइन। पहले से ही हम अच्छी से अच्छी चीज रखेंगे तो आउटकम भी हमारा अच्छा ही निकलेगा। दूसरा देखिए, स्टैटिस्टिकल, एसपीसी, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल मेथड हम लोग हमेशा वहां पे लगाते हैं जहां पे यूनिट इंस्पेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। दैट मीन वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स आर देयर and it is very difficult to check each and every unit. So what we can do, that we can make use of the random selection among a lot, and we can check the quality of the random selected sample, and on the basis of the result of the selection, the whole lot may be accepted or rejected. Statistical process control involve comparing the output of a process or a service with a standard. कि हम लोग जो रिसीव किया है, जो पहले से हमारे पास थे, उसको हमने कंपेयर किया। डिटरमाइनिंग whether the process can produce a product that meet the desired specification. ठीक है। ऑनलाइन SPC means the information is gathered about the product, process and service while it is functional. The corrective actions in that operational phase. This is real time based. मतलब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बेसिकली ऑफलाइन नहीं है, ये एक तरह से ऑनलाइन है और टाइम बेस्ड है। तीसरा, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द सैंपल and the acceptance criteria of the lot is already decided based on the meeting. मतलब हमने ये मान लिया है कि पूरे लॉट में, अगर मान लीजिए हमारे पास
ये 1,000 यूनिट्स का लॉट है और उसमें से हम पहले से तय कर लें कि 5% डिफेक्टिव होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन 5 के ऊपर हो गया तो पूरे 1,000 को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो दैट इज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग की हाउ मच डिफेक्टिवनेस विल बी एक्सेप्टेड। स्टेप्स इन क्वालिटी कंट्रोल, that when we are making the application of quality control, तो कौन कौन से स्टेप्स हमको ध्यान में रखने हैं so that the process involved in quality control can meet the objective of the quality control। सबसे पहला देखिए, पॉलिसी बना लीजिए भाई, क्योंकि यहां पहले ही कहा गया है कि क्वालिटी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द डिजायर्डनेस ऑफ द कस्टमर। तो पहले से आप क्वालिटी की पॉलिसी बना लीजिए कि आप किसको क्वालिटी कहते हैं, किसको क्वालिटी मानते हैं, किसको नहीं मानते। पॉलिसी, पॉलिसी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स दैट वी कैन से। फिर स्टैंडर्ड को सेट कर लीजिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर के कॉस्ट, प्रेफरेंस, उन सबको देखते हुए स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशंस को आप सेट कर लीजिए। फिर आप देखिए आप कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, what inspection plan that you are going to set, then you deduct from the set standard of specification। Deduct means examination, that you are going to examine the deviations from the, or you can say you identify the deviation from the standards। When you identify it, then you take the corrective measures or corrective actions so that the desired standards can be met। Decide on salvage method, how defective parts are disposed। जो भी डिफेक्ट्स आपके पास आए हैं, जिसको हम लोग स्क्रैप मान सकते हैं या फिर अनयूज या नॉट टू बी यूज्ड इन मटेरियल होगा, उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। डेवलपिंग क्वालिटी कॉन्शियसनेस बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर कस्टमर कोई क्वालिटी हमारा फिक्स कर रहा है, सो दैट फिक्सेशन ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी ऑल्सो, एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट वी आर एबल टू कंट्रोल और डेवलप द क्वालिटी। डेवलपिंग प्रोसीजर फॉर गुड वेंडर एंड वेंडी रिलेशन, ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि जो आपके सप्लायर्स हैं उनको आप टाइमली ऑर्डर दीजिए, टाइमली पेमेंट करिए, ऑटोमेटिकली संबंध अच्छा बना रहेगा, एंड द स्टैंडर्ड क्वालिटी, द गुड क्वालिटी इनपुट्स में बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। व्हाट आर द टूल्स कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए, अभी हमने टाइप्स देखे थे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, स्टैटिस्टिकल, एक्सेप्टेंस वाले। अब टूल्स कि हम क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये 7 तरीके हैं। देखिए, क्वालिटी को बेसिकली चेक करना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि लाइक आई एम टीचिंग, तो हाउ यू आर गोइंग टू चेक द क्वालिटी। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं and which where the measurement of the quality is very difficult and fixing the standard is also very difficult, but still certain tools are there with the help of which we try to measure the quality। Pareto chart, check sheet, causes and effect diagram, scatter diagram, histogram, graphs and flow charts and control charts। मेजर जितने भी टूल्स आपने अभी देखे हैं, इन सब में मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के बाद देन वी एग्जामिन दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टैंडर्ड दैट वी आर मीटिंग। लाइक परेटो चार्ट, लाइक यू कैन सी परेटो चार्ट बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग जो हमारे डिफेक्टिव मटेरियल है या प्रोसेस है, उन सब चीजों को हम सीक्वेंस में रखते हैं।
फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। देखिए, जो हेल्प प्रायोरिटाइज बाय अरेंजिंग देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, मेन चीज can be used to identify the problems in number of the forms, right? It can be used to identify problems like analysis of losses by material। आप ये एनालाइज करिए कि मटेरियल से नुकसान कितना हुआ, नंबर एंड पास्ट नंबर। लॉसेस बाय प्रोसेस से कितना लॉस हुआ हमारा, लॉसेस बाय प्रोडक्ट फैमिली, लॉसेस बाय सप्लायर, लॉसेस बाय कॉस्ट ऑफ द पार्ट, लॉसेस बाय फेलियर मोड, loss, or we can say a Pareto chart of the reason for the good, for the poor quality. Poor design will be the major reason and indicated by 64%. Thus, this is the problem that manufacturing unit should address first. मतलब अगर 64% प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर डिजाइन की वजह से हुई है, पुअर डिजाइन, then this should be the most priority aspect which has to be taken or dealt by the company itself. Poor design, defective parts, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। और देखिए आपके चार्ट, देखिए आप, ये प्रेटो चार्ट है। क्या किया गया है, परसेंट फ्रॉम ईच केस, पुअर डिजाइन, डिफेक्टिव पार्ट्स, ऑपरेटर एरर, रॉन्ग डायमेंशंस, सरफेस एबर्शंस, मशीन कैलिब्रेशंस एंड डिफेक्टिव मटेरियल। ये कॉजेज ऑफ पुअर क्वालिटी हैं कि पुअर क्वालिटी जो हमारे प्रोडक्ट में आई है उनके ये कॉजेज हैं। तो पुअर डिजाइन देखिए परसेंटेज 64% है, तो सबसे पहले रखा गया कि सबसे पहले इसको डील करेंगे। डिफेक्टिव पार्ट्स 13 है। ऑपरेटर मतलब कि हम लोग ने क्या किया कि कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उनके जब रीजंस आइडेंटिफाई किए तो उसको इस चार्ट में हमने प्लॉट कर लिया और एक एक करके हम इन सबको डील करेंगे। लेकिन अगर 64% को सबसे पहले डील कर लेंगे, 13, 10, 6, 3, 2, 2, ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट विद एवरी प्रोडक्शन बेल्ट द क्वालिटी इज गोइंग टू एनहांस, राइट। सेकेंड देखते हैं, चेकशीट। चेकशीट आप जानते हैं वो आपका होता ना, क्या बोलते हैं, टेली चार्ट, उसी तरीके से चेकशीट होता है। चेकशीट फैसिलिटेट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग और डेटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड एज दे हैपन विच रिवील पैटर्न और ट्रेंड। डेटा कलेक्शन यूजिंग अ चेकशीट इज ऑफन द फर्स्ट स्टेप इन द एनालिसिस ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम। देखिए इसका एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज द टेबल of a check sheet of an organization, computer related problem, component replaced by the lab। कि हमको ये चार्ट बनाया कि कंपोनेंट को कितनी बार लैब में रिप्लेस किया गया। टाइम पीरियड लिया गया 22 फरवरी से 27 फरवरी, मतलब 5 दिनों में, 5 दिनों में। और रिपेयर टेक्नीशियंस का हमने नाम रखा। ये मान लीजिए एक टीवी सेट मॉडल है। इंटीग्रेटेड सर्किट 1, 2, 3, 4। कैपेसिटर्स इतनी बार हमने इनको रिप्लेस किया। रेजिस्टर्स 2 बार, ट्रांसफार्मर्स इतने बार, कमांड नहीं, सीआरटी 1। इसका मतलब ये जब चार्ट बन गया तो द मैनेजर इज गोइंग टू एनालाइज दैट विच पार्ट इज ब्रिंगिंग द हायर प्रॉब्लम इन द डिफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट। कि हमने 5 दिन में इनको इतनी बार रिप्लेस किया है। ऑटोमेटिकली द थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो ये आपका चेक शीट हो गया। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ये एक तरह से फिशबोन की तरह डायग्राम बनता है। फिशबोन की तरह, देखिए लिखा भी है इसमें दैट इट इज फिशबोन डायग्राम।
developed by Carve in 1943. Help the management trace customer complaints directly to the operator involved. The diagram helps the management trace customer complaints directly to the operator involved. The main quality problem is referred as fish head. Quality problem ये हो गए fish head. The major categories of potential causes: structural bones and likely specific causes to ribs. ये देखिए पूरा fish bone. Machines की problem, humans की problem, measurement, environment, material and process. देखिए machine क्या है? Out of adjustment, tooling problem, old. Human, poor supervision किया गया, lack of concentration, inadequate training. Material, defective from vendor से ही defective आया, not to specification, material handling problem, loading और unloading में problem हो गई हो. तो इस तरह से we are able to chalk out the problems which are going to exist in the manufacturing with respect to machine, human, measurement, environment, material and process. राइट? मतलब ये एक तरह से टूल्स हैं, ये ढंग है, ये तरीके हैं जिससे हम लोग प्रॉब्लम्स और इश्यूज को हम लोग चॉक डाउन करते हैं सो दैट द करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन. स्कैटर्ड डायग्राम, relationship between two variables, cause and effect, whether stated cause truly does not impact the quality. मतलब जितनी भी चीजें हैं उनको हम पहले से एक स्कैटर्ड डायग्राम, एक प्लॉट कर लेते हैं. इससे हमको आइडिया लगता है कि किस समय क्या चीज हुई है, एंड वी आर एबल टू नो दैट व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स दैट वी आर सपोज टू कीप इन माइंड. इसको स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं. सिंपल है, एक ही तरीके से है. The plots advertising expenditure against company's sale and indicates a strong positive relationship between the two variables. मतलब दो वेरिएबल को लेकर हमने चीजों को प्लॉट किया so that we are able to know that what is the relationship between the two variable. ये किसको बढ़ाने से क्या बढ़ता है और क्या घटता है. If we are bringing any change in the one variable, then what will be the impact on the other variable. कि अगर हम एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट को, एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं तो सेल हमारी बढ़ जाती है, और एडवर्टाइजिंग हम बढ़ाते हैं तब भी सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. देन ऑल्सो दिस कैन बी अ रिलेशनशिप. हिस्टोग्राम पढ़ा होगा आप लोगों ने बड़े अपने 10th 12th में. बेसिकली histogram displays the amount of data that are difficult to interpret on their raw form. Summarizes data measured on a continuous scale. देखिए, frequency of occurrence और categories को हमने इसमें प्लॉट कर दिया है, एंड एक तरह से आपका चार्ट बन जाता है. Data is indicated on the histogram. A bar chart is a series of bare representing the frequency of occurrence of data characteristics. The bar height indicates the number of times a particular quality characteristics were observed. Height से मालूम पड़ेगा कितनी बार, बड़ा छोटा. राइट? फ्लो चार्ट एक तरह से ये ट्री की तरह होता है जो दिखाता है किस चीज से किससे इंपैक्ट होता है एंड व्हाट इज रिलेटेड टू whom. It shows the sequence of event in a process. This will be the first, then this, then this, then this, then this. But we can say this is going to affect here, which will be brought here. But दिस इज गोइंग, मतलब अगर यहां से ये दिक्कत हो, अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो यहां पे भी हम ये क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहां पे भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं. फ्लो चार्ट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द वेरियस इवेंट्स विच आर देयर इन द प्रोसेस, और हमको ये मालूम पड़ता है कि किसके होने से किसके क्या फर्क पड़ रहा है. दे कैन आइडेंटिफाई
the bottleneck, redundant steps, and non-value added services also. Directly, knowledge of the person who is directly involved in the particular process. Control charts, the most important. ये हमारा जो AB है, ये बेसिकली सेंट्रल कंट्रोल होता है, बीच की लाइन, और ये अपर कंट्रोल लिमिट, ये लोअर कंट्रोल लिमिट। अपर और लोअर मतलब ये हो गया कि हमारा डिजायर्ड तो ये है, ये पॉइंट जैसे आया, ये हमारा डिजायर्ड है, लेकिन फिर भी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है लार्ज स्केल पर, तो डेविएशंस आर ऑब्वियस। तो सर्टेन टाइम टू सर्टेन लिमिट द डेविएशंस कैन बी एक्सेप्टेड। तो यहां पर ये अपर और लोअर दो एक्सट्रीम पॉइंट फिक्स कर दिए गए कि अगर एवरेज तो हमारा ये है, सेंट्रल तो हमारा ये है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत डेविएशन यहां तक अपर साइड और लोअर साइड यहां तक होगा तब भी एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर अपर के ऊपर और अपर के लोअर के नीचे चला गया, देन दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जैसे इस चार्ट में देखिए, ऑल द प्लॉटिंग हैज बीन डन एंड दे आर कमिंग विद इन द अपर and within the lower. That means the things are controlled. This is known as control charts. इसको हम लोग SQC, statistical control charts के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मीन और रेंज चार्ट, मीन चार्ट एंड रेंज चार्ट, दो चार्ट बनाते हैं। कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी, दो कॉजेज होते हैं भाई, चांस एंड असाइनेबल। चांस तो मतलब बाय चांस है, दैट मीन्स अपने आप होगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। विच आर इनहेरेंट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेन चीज है ना, कि मतलब आप क्या करें, अगर इफ यू ब्रिंग अ बैग ऑफ पाउडर, तो ऑटोमेटिकली द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज से दैट सम quantity of the powder will go waste while packing. ये इनहेरेंट है उसमें। मशीन कभी कभी वेरिएशंस लाती है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं, कॉम्पोजिशन वेरिएशंस ऑफ मटेरियल होते ही होते हैं। हर बार एक जैसा, जैसे आप बिस्किट खाते होंगे तो एवरी टाइम यू कंज्यूम बिस्किट, बट देयर विल बी अ स्लाइट वेरिएशन in the taste and quality every time, slight to slight that we can say. कभी वो सिक्का ज्यादा होता है और कभी नहीं होता है। Assignable, which are brought due to machine, manpower or material. That means there is a possibility that we are able to identify and corrections can be done. ये inherent नहीं है, ये external है। Like lack of skill in operation, wrong maintenance practice, नया वेंडर आपने एंगेज किया, error in setting jigs and fixtures, raw material defects. So all these are due to material, manpower or machine. That means they can be corrected whenever they are assigned. But चांस कॉज दे कैन नॉट बी करेक्टेड, अपने आप आते हैं और अपने आप जाते हैं। तो इन दिस वे वी हैव ट्राइड टू डिस्कस टुडे अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल विच अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज सपोज टू कंसिडर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अप द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज योर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये चार्ट, जो कंट्रोल चार्ट आपने देखा है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, विच विल बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।